So now, good morning, and we are moving towards the topic electric field. You know, what is electric field? Because we have completed first chapter, that is Coulomb's law and superposition principle, and now we are moving towards the electric field, right? So the topic is electric field. This is very simple and interesting topic, right? So this is electric field. So what we do here, or how we can define electric field, so suppose a charge, a q, charge q, this is origin, is placed at this point, right? Fine, this is positive charge. The charge placed at point O here, where we can see this is the point placed at the at point O, Q charge. Now, how we can say that electric field is being created or electric field is being generated? How we can say? Okay. Now we take a point P. P is any point we are taking, right? And we just want to know whether this point P is coming under the influence of this Q or not. Or we can say if this point is falling in the electric field created by this charge Q, right? So we can take any point P, right? So what we do here, what we think here, and this we assume that this is at distance r, but it is at distance r, right? So r is the distance. Okay. So how we can find out? So first we will try to say that electric field around a surrounding space, around a surrounding space, electric field created by a charge, is the electrical or electric environment in surrounding space, है ना? तो इसके चारों तरफ जो हमारा सराउंडिंग स्पेस है वहां पर किस पॉइंट पर, ठीक है, इज द इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट, यानी कि जो इलेक्ट्रिक एनवायरनमेंट जो क्रिएट हो रहा है इसके चारों तरफ, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. हाउ कैन वी से दैट? Okay, the simple thing is we try to take let a charge called test charge q naught, and having positive nature, this is a positive charge or positive charge of vanishing or very small magnitude, that is q naught is tending to 0. q naught tending to 0 हम इससे लेते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं, इसलिए हम स्मॉल चार्ज लेते हैं. पॉजिटिव तो लेंगे, द चार्ज कॉल्ड टेस्ट चार्ज q naught, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है. दिस चार्ज हैज गॉट पॉजिटिव, इसका नेचर क्या होगा, इट इज पॉजिटिव चार्ज और वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड. स्मॉल मैग्नीट्यूड इससे लेते हैं कि बिकॉज इसको हम एज अ टेस्ट चार्ज इस्तेमाल करते हैं. ये हमारा टेस्टर हो गया, कहीं भी जाना है इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करना है तो लाओ ये q naught को ले आओ, जरा टेस्ट करें, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आसपास है या नहीं. तो ये q naught इसकी वैल्यू स्मॉल इससे लेते हैं ताकि जो अदर चार्जेस जहां पर आप टेस्ट करने जा रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि उनकी फील्ड को ये डिस्टर्ब कर दे या उनको ये इफेक्ट कर दे. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि ये उनको इफेक्ट कर दे, इसलिए हम इसकी मैग्नीट्यूड को छोटा लेते हैं एंड दैट इज वेरी स्मॉल, राइट. सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड. अब बात ये आती है कि भाई कैसे पहचानोगे
कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम क्या करेंगे, हम P पॉइंट पर एक Q नॉट चार्ज, इस Q नॉट टेस्ट चार्ज को लेकर आएंगे जिसकी पॉजिटिव वैल्यू है। फाइन, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप सुन लो, Q नॉट को आपने P पॉइंट पर लाकर पहुंचा दिया, और if at P this charge is experiences a repulsive force, if at P this charge Q naught is experiencing, or it is experiencing a force that is repulsive force, because this is positive charge, this is positive charge, so ultimately it will be a repulsive force. And if this Q naught charge is experiencing a repulsive force, then we can say that there is the existence of electric field at point P. Simple like that, nothing more. कि अगर P पॉइंट पर हमने Q नॉट चार्ज को रखा और वहां पर उस पर फोर्स लग रहा है, तो हम कहेंगे कि P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ लेकर चले जाओ, यहाँ इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर आपने Q नॉट पर रखा, Q नॉट पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, क्या बोलेंगे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यानी कि दैट पॉइंट इज नॉट कमिंग अंडर द एरिया ऑफ दिस, कमिंग अंडर द एरिया ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय Q। ठीक है, तो वहां पर फोर्स नहीं लगेगा, तो बोलेंगे नहीं, वहां एग्जिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर नहीं है। तो जिस पॉइंट पर भी आपको फोर्स एक्सपीरियंस हो Q नॉट के द्वारा, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे कि there is the existence of electric field at that point. Fine. So इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? Now the question is कैसे हम डिफाइन करेंगे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, तो देखिए डिफाइन करते हैं, है ना, जब आइडिया है हमारे पास तो हम लोग वर्ड्स भी निकाल ही लेंगे, है ना, इफ वी हैव गॉट आइडिया तो वर्ड्स भी निकाल जाएंगे, नथिंग टू वरी अबाउट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ at any point is defined as the force, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स defined as the force experienced by the charge Q naught, or experienced by the test charge, when you are placed at that point without changing the position of source charge. कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जिसको हम E से रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज E वेक्टर क्वांटिटी है, एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स, experienced by the test charge Q naught placed at that point without, right, यानी कि इस Q naught पर फोर्स लगेगा without changing the position of source charge, और फोर्स सोर्स चार्ज की पोजीशन को हम चेंज नहीं करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप उठा के उसको इधर उधर करते जाओ और फिर चेक करो कि हाँ यहाँ पर फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसको एक और तरीके से हम डिफाइन करते हैं, वो भी मैं आपको बता। इसको हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं, सो E वेक्टर विल बी इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F डिवाइडेड बाय Q नॉट, राइट। ये आपका, ये दिस इज अगेन द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
So electric field is also, अब इसको कैसे डिफाइन करोगे आप? इसको आप डिफाइन करोगे, it is defined electric as पर लिखेंगे electric field strength is defined as the electrostatic force defined as the electrostatic force per unit test charge, right, when exerted on, ऐसे लिखेंगे, defined as the electrostatic force per unit test charge exerted or experienced by vanishingly small test charge Q naught tends to 0 at that point. ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पे एट अ पॉइंट, बिकॉज यहाँ पर आपने एट दैट पॉइंट लगाया, तो यहाँ पे ऐड कर दीजिए, एट अ पॉइंट यहाँ पर ऐड कर दीजिए, बिकॉज एट दैट पॉइंट लिख रहा है, तो किस पॉइंट पर, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड बाय और एक्टिंग ऑन, और एक्टिंग ऑन, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्टिंग ऑन है, पर यूनिट टेस्ट चार्ज एक्टिंग ऑन, किस पर, vanishingly small test charge, कैसा है, तो Q naught tends to 0 at that point, right? ठीक है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं दिख रहा है आपको इसमें? आई होप कि इट्स कंप्लीट। इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को डिफाइन करने के लिए इससे बढ़िया लैंग्वेज अब नहीं मिल सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ at a point is defined as the electrostatic force per unit test charge experienced or experienced by the or acting on vanishingly small test charge Q naught tending to 0 placed at that point। एक वर्ड आप यूज कर सकते हैं, placed at that point या when placed at that point, when placed at that point, this finishes, right? So this is the definition of electric field, right? अब आपको यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, यहाँ पर ये फोर्स जो हम कैलकुलेट करेंगे, तो ऑब्वियस यहाँ पर एक रिपल्सिव फोर्स आएगा, so this repulsive force will be equal to F vector into Q naught upon R square, ठीक है? ये आपका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, राइट? अब आइए, अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं, और अब देखिए यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ पर हम अगर पॉइंट को ले P और ये हमने Q नॉट को यहाँ पर रख दिया और ये हमारा R हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज डिफाइंड बाय दिस पोजीशन वेक्टर R, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट इज क्रिएटेड बाय दिस चार्ज Q, है ना? तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड is first conclusion है हमारा, this is called electric field is created by Q charge at any point R, vector, और R vector उस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर है, R vector, ठीक है? so that is ER, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना? and this is the electric field at position vector R। and second thing कि जब वहां पर आप चार्ज लेकर आओगे तो फोर्स किस पर एक्सर्ट करेगा, so force will be used as Q naught into ER, so force is experienced by
या ऐसे कह सकते हैं कि फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय ईयर, ठीक है। सो फोर्स इज इक्वल टू, सो फोर्स is equal to electric force is equal to charge into electric field, ठीक है ना। तो ये आपने फोर्स वहां पर क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो अब ये बात आती है कि ये फोर्स कैसे पता चलेगा, है ना। तो फोर्स की मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगी, तो फोर्स की मैग्नीट्यूड जो है दैट इज डिपेंडेंट ऑन दिस ईआर, यानी कि ईआर आपकी जितनी ताकतवर होगी, जितनी ज्यादा होगी, उतना ही आपका फोर्स होगा, ठीक है। सो फोर्स इज नथिंग बट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, सो फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस चार्ज, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अब हम बात करते हैं, अब हम आगे आपको लेकर चलते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये टर्म भी आप यूज कर लीजिएगा, फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट, ठीक है, इज गिवन बाय ई आर, दैट इज एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई आर वेक्टर। ये भी होता है, तो लैंग्वेज का सिर्फ फर्क है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये आप चीजें याद रखिएगा कि इस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपको आप क्यू नॉट चार्ज को लेकर आएंगे तो आपको उस क्यू नॉट पर एक फोर्स लगेगा और मैग्नीट्यूड डिपेंडेंट ऑन दिस ईआर, राइट। सो वी कैन से कि दिस इज आवर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होगी या स्केलर क्वांटिटी होगी, ये आपका क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो स्केलर होगी या वेक्टर होगी। So electric field is a vector quantity, याद रखिएगा, this is very important, electric field is a vector quantity, इसको हमेशा याद रखिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। So it is, that is E vector, right? So dimension, what is dimension of E यूनिट वेक्टर क्या होगी इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या होना चाहिए आपके मुताबिक, क्या कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ई को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं फोर्स अपॉन चार्ज, राइट। सो डायमेंशन ऑफ ई की अगर हम बात करें, डायमेंशन ऑफ ई की बात करें, हम सबसे पहले फोर्स लेंगे, तो फोर्स का तो कुछ भी लो आप, कैसे भी काउंट करो, mlt minus 2 and charge is equal to, चार्ज क्या होता है, चार्ज इक्वल टू, बोलिए व्हाट इज चार्ज, चार्ज को किस टर्म में काउंट करेंगे, q is equal to it, ये भी होता है एम्पियर सेकंड के टर्म में भी हम इसको काउंट कर लेते हैं, यानी कि at के फॉर्म में भी हम काउंट कर लेते हैं। तो आप at फॉर्म ले लो यहाँ पे, अब लेके छुट्टी करो इसको, a stands for ampere and t for time, so we can write ml a power minus 1 and t to the power minus 3. This is your dimension of electric field, ml a t minus 3, ml 3 a minus 1 ampere, a stands for ampere, so keep in mind गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर गलती होगी तो बहुत छोटी चीजें हैं सब, ठीक है। So first thing we have to keep in mind, and that is electric field. Electric field is a vector quantity, and second thing that's a dimension of E, आपको भी मिल गया। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी कि अगर हमें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना हो ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट पर, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो दिस डेरिवेशन वी हैव टू कंप्लीट, राइट। सो आइए मूव करते हैं आगे, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको याद रखिएगा, डायमेंशन ऑफ ई इज इक्वल टू mlt minus 3 a minus, ऐसे भी लिखा है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, राइट। सो आगे बढ़िए, अब हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन की बात करते हैं, आप बोलते हैं to derive the expression of electric field at a point due to a point charge,
due to a point charge, right? So this is your derivation. so ठीक है ना, इसको हमें काउंट करना है. कैसे हम काउंट करेंगे ये देखिए भाई. सबसे पहले व्हाट यू डू, सबसे पहले आप पॉइंट चार्ज लोगे. ठीक है, देखो इसका हम कैसे इसका डेरिवेशन में करेंगे. लेट Q be any point charge, any point charge placed at O, right? ठीक है, तो एक पॉइंट O लीजिए और यहाँ पर चार्ज कर दीजिए. एंड यू वांट टू कैलकुलेट इस पॉइंट पर P, and this is R. So we take any point P, any point P at a distance of R from O, that is point charge. ठीक है, पॉइंट चार्ज के बारे में मालूम है आपको. हम इसकी एरिया वगैरह काउंट नहीं करते हैं, इसको एज अ पॉइंट काउंट करते हैं कि इसके पास कोई एरिया नहीं है. ठीक है, सो दिस Q यहाँ पे आ और ये. अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे. लेट Q नॉट बी एनी टेस्ट चार्ज, बी एनी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट P. जो पीछे कहानी सुनाई थी आपको वही अब यहाँ करने जा रहा हूँ मैं. तो हमने क्या किया, Q नॉट एक डिस्चार्ज लिया और उसको हमने कहाँ रख दिया, P पर रख दिया. ठीक है, सो व्हाट विल हैपन. सो दिस इज Q एंड दिस इज Q नॉट. क्या होगा, एक रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा. ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, Q नॉट बी एनी पॉजिटिव डिस्चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट P. सो चलिए भाई देखते हैं सो क्या होता है. ठीक है, इसको मैं अब बोर्ड के सबसे शुरू में लिखता हूं. ये आ गया आपका O, यहाँ आपने Q को रखा और ये आपका आ गया दिस इज पॉइंट P, जहां पर आप Q नॉट पर रखा और इसी पॉइंट पर आपका फोर्स F वेक्टर लग रहा है एंड दिस इज एट डिस्टेंस R. ठीक है, नाउ तो आप क्या करेंगे, आप दिस टेस्ट चार्ज Q नॉट experiences a force repulsive or a force F is exerted on charge, कौन सा चार्ज, on test charge, and test charge Q naught is given by और ये फोर्स कैसा है, तो ये फोर्स आपका रिपल्सिव नेचर का है. दिस फोर्स F is repulsive nature, ये repulsive nature का है, ये आप लिख सकते हो. ठीक है ना, so what will the force, so F will be equal to 1/4 pi epsilon naught Q naught by R square Newton. ठीक है, this is your first equation, right? So what will be the electric field? Electric field is what? क्या होगा electric field? Therefore electric field at point P is given by E is equal to F by Q naught. So this is 1/4 pi epsilon naught Q naught by R square, and this is Q naught, this gets cancelled, so 1/4 pi epsilon naught Q by R square Newton per coulomb is your electric field. So electric field we are getting 1/4 pi epsilon naught Q by R square Newton per coulomb, but it is in scalar form. This is in scalar form. अब तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, so वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे 1/4 pi epsilon naught Q by R square, and this is R unit vector, simple like that.
ठीक है. So this is in vector form and it is in scalar form. So this completes your electric field at a point due to at a point P, right, due to a point charge. So this finishes electric field expression. Now I am coming towards the superposition principle. It means what will be the net electric field if a number of charges are present in the system. अगर बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट हो किसी सिस्टम में तो इस एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो उसको हम फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. इट मींस कि हम एक वक्त में किसी भी दो चार्ज के बीच में, यानी कि जिस पॉइंट पर कैलकुलेट करना है वहां पर हर चार्ज का इंडिविजुअल हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते जाएंगे और लास्ट में हम उसको सबको सम अप कर देंगे इंडिविजुअल एक एक का. एट वन टाइम एक चार्ज, एट सेकेंड टाइम दूसरा चार्ज, तीसरा चार्ज, एंड जब हम दूसरे चार्ज को काउंट करेंगे तो बाकी सारे चार्ज एब्सेंट. पहले चार्ज को काउंट करेंगे बाकी सारे चार्ज एब्सेंट, तीसरे चार्ज को काउंट करेंगे बाकी सारे चार्ज एब्सेंट. तो एट अ टाइम एक एक चार्ज को हम काउंट करते जाएंगे और उसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी उसका हम फिर वेक्टर सम ले लेंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज कर लेंगे, तो हमारे को मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट इन द system, right? So just within no time.